Hello students. So let us continue with the Fourier series. There are four types of problems as I told you, and the type of problem is decided by the interval in which the function is defined f of x. 0 to 2 pi was the first type of problem and 0 to 2n is the second type of problem. So let me come back to the Fourier series. Type 2 problems, interval is 0 to 2l and the function is periodic, that is after 0 to 2l you will have 2l to 4l, 4l to 6l, same function will repeat there. Now the Fourier series is given by, in this interval, f of x, हमेशा की तरह we write a 0 by 2, clear our intentions at the first sight, a 0 by 2 चेक कर समझ जाएगा, summation n equal to 1 to infinity n cos n pi x by n, see the change, plus bn sin n pi x by n. Actually this is the original formula, but when we write 0 to 2 pi, in that case this n becomes pi. So when n becomes pi, L and pi cancels, and what we get is our 0 to 2 pi formula, cos nx sin nx. But now it is not 2 pi, it is in general 2l. So cos n pi x by l bn sin n pi x by n. Okay, this is the Fourier series. You can give different summation to both at the end if both survive. where Fourier coefficients इनका नाम मैं दोहरा रहा हूँ, a0, an, bn are given by a0 1 by l 0 to 2l, जैसे 1 by pi 0 to 2 pi, f of x dx, an 1 by l 0 to 2l, f of x cos same that angle n pi x by l, and bn 1 by l 0 to 2l, f of x sin n pi x by l dx. Understood? This is how we find a0, an, bn. Only change is in the angle and the interval. Now there is one Parseval's ki jai also, that is called as a Parseval's identity. Okay, Parseval's identity. What is that Parseval's identity? 1 by l, same 0 to 2l, f of x square dx. जैसे वहां था 1 by pi 0 to 2 pi, so 1 by 0 to f of x square रहता है. इस यहाँ आगा a0 square by 2 plus summation n square plus bn square. As simple as that. Understood? बच्चों इसको बोलते हैं हम लोग पार्सेवल की जय, Parseval's identity. When pi square by 6 equal to 1 by 1 square वगैरह पूछा है तो नॉर्मल Fourier. When pi is to 4 by 90, 96 पूछा है तो Parseval यूज करना है. Understood? इस प्रकार से आपको काम करना है. Please copy that. The students, let us solve the first problem of this type. Find Fourier series for f of x is x square. अरे इसको तो हमने सॉल्व किया है, हमारा सेकंड प्रॉब्लम था, बट इंटरवल इज 0 to a है, ये डिडक्शन है. इसको शायद दो वीडियोस लगेंगे, आधा ये और आधा डिडक्शन को जा सकता है. तो यहाँ पे बच्चों ये 0 to 2 पाई नहीं है, मतलब 0 to 2l है, तो 0 to 2l के जगह मैं 0 to a लिखा हूँ. हमारा फॉर्मूला 0 to 2l का है, पर ये 0 to a है, इसका मतलब 2l is a, बराबर, यानी l हो जाएगा a by 2, बराबर. Now the Fourier series
is given by, the Fourier is given by what? F of x a0 by 2 summation n equal to 1 to infinity an cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l. Understood? बट l कौन है बच्चों? l कौन है? a by 2 summation 1 to infinity an cos n pi x divided by l कौन है बच्चों? a by 2 plus bn sin n pi x by a कौन? l कौन है? a by 2. अब ये a by 2 ऊपर आएगा तो 2 by a होगा, तो a0 by 2 summation 1 to infinity an cos 2n pi x by a plus bn sin 2n, ये 2 ऊपर जाएगा ना, 2n pi x by a. अंडरस्टूड? ये a है. ओके, इस प्रकार से होगा ये समेशन. अब यहाँ पे हमको धीरे धीरे a0 पहले फाइंड करना है. where what is a0? 1 by l 0 to 2l f of x dx. That is 1 by l means a by 2. l is a by 2. 0 to 2l. 2l means a. f of x is x square dx. a by 2 becomes 2 by a. Integration x raised to 2, x raised to 2 plus 1 upon 2 plus 1. And x cube by 3. कहाँ से कहाँ? 0 to a. That is 2 by a. पहले x के जगह a पुट करो. a cube by 3 minus x के जगह 0 पुट करो तो 0 आएगा. तो आंसर आएगा 2 by a into a cube by 3. एक a कैंसल. 2 a cube में से a गया. a square by 3. So our a0 is 2a square by 3. अंडरस्टूड? यहाँ तक हम आ गए. a0 हमें मिला. अब हमें क्या फाइंड करना है? an फाइंड करना है. व्हाट इज an? 1 by l 0 to 2l into f of x cos n pi x by l बराबर. ये किसका फॉर्मूला? an का. 1 by l 0 to 2l f of x cos n pi x by l. That is 1 by l means कौन? a by 2. 0 to 2l means a. f of x कौन है? x square into cos n pi x by l कौन है? a by 2 and dx. तो क्या होगा? रिमूव 2 by a इंटीग्रेशन 0 to a x square cos, ये ऊपर जाएगा तो 2n pi x by a dx. अंडरस्टूड? बच्चों अभी u into v रूल है. कौन रूल है ये? u into v रूल है. जगत तो बहुत जाएगी. हाँ, 2 by a. चलो u into v क्या होगा? पहले मैं x स्क्वायर लिखूंगा बराबर. cos का इंटीग्रेशन sin 2n pi x by a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x कौन? 2n pi by a. x का कोएफिशिएंट बराबर. प्लस के बाद माइनस है. ओके, सॉरी, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन है बच्चों? 2x है. साइन का इंटीग्रेशन कौन है? माइनस cos 2n pi x by a अपॉन एक बार और 2 आएगा तो 2 स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय a स्क्वायर. अंडरस्टूड? ये होगा. माइनस के बाद प्लस 2x का डेरिवेटिव 2 और x का 1. अब माइनस अपनी जगह है. cos का इंटीग्रेशन sin 2n pi x by a सेम कॉपी आएगा. अपॉन और एक बार आएगा, और एक बार n pi x by आएगा तो 2 क्यूब
एन क्यूब पाई क्यूब अपॉन ए का क्यूब। अंडरस्टूड। ये कहाँ से कहाँ है? 0 to a। आपको पहले अपर लिमिट पुट करना है माइनस लोअर लिमिट। बच्चों अपर लिमिट पे साइन वाले 0 होने वाले हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ a0। हाँ, 2/a। जरा गौर फरमाइए, व्हेन आई विल पुट x इक्वल टू a, देखो ये x जब a आएगा ना, a कैंसिल होगा, साइन 2n/0 आता है। इन सिंपल इस टाइप ऑफ प्रॉब्लम में पहले मैं अपर लिमिट पुट कर जा रहा हूँ। देखो जरा गौर से, पूरा ये ब्रैकेट है ना, इधर अपर लिमिट आएगा। इस अपर लिमिट में व्हाट विल आई डू बच्चों? साइन वाले सब 0 करने वाला हूँ। चलो, तो मैं अपर लिमिट में जब मैं x को a पुट करूंगा, ये साइन वाला 0 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, ये 2 होगा, ये a होगा, ये cos होगा, ये 2n पाई। x के जगह अपर लिमिट क्या आएगा रे? a आएगा, बरोबर, डिवाइड बाय a होगा, बरोबर, अपॉन 2 स्क्वायर इज 4, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अंडरस्टूड। माइनस ये भी 0 होने वाला है, क्यों? बिकॉज साइन वाले 0 लिखते, पूरा 0। खाली इधर x के जगह इधर बच्चों क्या आया? a आया। आपको घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देख देख के समझेगा नहीं। x के जगह a आया, माइनस में प्लस हो गया। अब ये पूरा अपर लिमिट a पुट हो गया, अब माइनस, अब मैं पूरा लोअर लिमिट यानी x को 0 पुट करूंगा। x को 0 पुट करूंगा तो साइन वाला अभी बस 0 ही है, कॉस वाला 0 नहीं होता, लेकिन x को 0 पुट किया तो ये भी 0 होने वाला है, प्लस हो गया, माइनस जो भी है, माइनस माइनस प्लस 0, माइनस ये साइन वाला भी 0 होने वाला है। तो ये बहुत ही बढ़िया काम हो गया, ये पूरा 0 हो गया। तो अंडरस्टूड क्या हो गया? ये a कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? देखो ये an है, तो उसमें क्या लिखा गलती से मैंने a था, तो an है, तो व्हाट इज an? an इज इक्वल टू 2/a, अंदर बाकी है, ये हो जाएगा 2a इनटू, ये हो जाएगा, उल्टा होगा तो बच्चों ये ऊपर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड मींस मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल, मतलब क्या होगा रे? ये होगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर, बराबर। डिवाइड मींस मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल, तो ऊपर जाएगा ना कि नहीं, तो ये a स्क्वायर ऊपर जाएगा और 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर नीचे आएगा। ये 2a लिखा। अब cos क्या लिखूंगा? cos बच्चों cos 2n पाई होगा, क्या होगा? cos 2n पाई, बस इतना ही रहेगा। अंडरस्टूड। cos 2n पाई। अब cos 2n पाई 1 है ना, cos 2n पाई इज -1 रेज़ टू 2n, बराबर ना, cos n पाई का रूल। -1 रेज़ टू 2n इज अ इवन नंबर, -1 रेज़ टू इवन क्या होता है? प्लस। सो cos 2n पाई +1 होगा। तो मीनवाइल ये a और ये कैंसिल होगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा बच्चों, हाँ ये देखो थोड़ी जगह हमारे लिए बची है an के लिए खास, तो हमारा an आएगा, देखो जरा क्या आएगा? 2 2 4 होगा, ये 2 2 4 और ये 4 भी कैंसिल होगा, ये a और ये कैंसिल होगा, तो खाली बचेगा a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर इनटू ए cos 2n पाई। बच्चों क्या आने वाला है? 1। तो हमारा an होगा, an आएगा a स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो ये हमारा an आया। और हमारा a0 बच्चों पहले आया है, हमारा a0 इधर आ गया है, a0 है हमारा 2a स्क्वायर बाई 3, तो ये दो घटक हमें मिल गए। अंडरस्टूड। सो प्लीज टेक डाउन, देखिए ये सेपरेटर वाला है दीवार यहाँ पे। आई विल नॉट केयर फॉर टाइम बिकॉज मैं सेकेंड वीडियो तक जाने वाला। प्लीज कॉपी। Now student, next we will find Bn. What is Bn? 1/l 0 to 2l f of x into sin n pi x by l dx, बराबर। But this l is what? l is equal to a by 2. So that Bn becomes 1/l 0 to 2l. 1/l means what? अब l की जगह वक्त आया क्या लिखे? a by 2,
L is a by 2 means 2L is a. So 2L के जगह क्या लिखूंगा a. f of x कौन है x square into sin n pi x by L कौन है बच्चों a by 2 and dx. Understood? A by 2 becomes 2 by a. Integration 0 to a. X square into sin. ये 2 ऊपर जाएगा तो 2n pi x by a into dx. ये है x square. अब ये u into v तो जनरलाइज करना है. You have to apply 2 by a. तो क्या होगा रे? Integration u into v copy x square. Sin का इंटीग्रेशन माइनस cos 2n pi x by a अपॉन x का कोएफिशिएंट 2n pi by a. ओके, ये ऐसा होगा u इंटीग्रेशन v प्लस के बाद माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव कौन है बच्चों 2x. अब ये काले का इंटीग्रेशन माइनस का माइनस cos का इंटीग्रेशन sin वही एंगल कोण 2n pi x by a अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x यानी एक बार 2n pi by a और एक बार आएगा तो उसका स्क्वायर होगा मतलब 2 स्क्वायर n स्क्वायर pi स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा. अंडरस्टूड? ओके, इस माइनस माइनस के बाद क्या आएगा रे प्लस. इधर ही करता हूं 2 into x का डेरिवेटिव 1 होगा और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और माइनस माइनस ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और ये पहले का माइनस और ये माइनस क्या होगा प्लस होगा तो क्या होगा कॉस 2n pi x by a अपॉन और एक बार वो आएगा तो 2 क्यूब होगा n क्यूब होगा pi क्यूब होगा अपॉन a क्यूब होगा. अंडरस्टूड? इस प्रकार से ये काम हो जाएगा 0 to a. थोड़ा टीडीएस काम है और ये bn का bn में 2 by a पहले लिखूंगा मैं यहाँ. अब मैं जितना अपर लिमिट में x है वहां अपर लिमिट a पुट करूंगा. x के जगह बच्चों a पुट करूंगा बराबर तो cos वाला बचेगा. क्या होगा देखो माइनस a स्क्वायर x को a पुट करूंगा माइनस साइन लिखूंगा. हाँ उसके बाद मैं लिखूंगा cos 2n pi x के जगह मैं a लिखूंगा अपॉन a है ही बराबर. हाँ अब ये साइन माइनस माइनस प्लस होगा. साइन वाला जैसे दिखा शहीद कर दो जीरो कर दो ये बचेगा भी कौन रे प्लस 2 cos. अंडरस्टूड और नॉट? क्या होगा फिर ये या नीचे लिखता हूं बच्चों प्लस 2 cos 2 cos उसके बाद 2n pi a by a यानी क्या हो जाएगा x के जगह मैंने a पुट कर लिया. ओके अपॉन कौन है बच्चे 2 क्यूब n क्यूब pi क्यूब by a क्यूब है बराबर. ये मैं सॉल्व नहीं किया हूं अभी तो. हाँ यानी ये फर्स्ट मैंने क्या किया पूरे इसमें मैंने अपर लिमिट पुट किया. अंडरस्टूड? पूरी इसमें अपर लिमिट पुट किया बराबर माइनस पूरे इसमें मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा. लोअर लिमिट 0 है तो 0 यहां पुट करूंगा ना तो ये पहली टर्म हो जाएंगी 0 माइनस 0 यानी 0 माइनस माइनस प्लस साइन भी 0 और x भी 0 ये भी हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा प्लस ये खाली बचेगा 2 सॉरी 2 सॉरी. उसके बाद व्हाट विल हैपन cos एक 0 है ना ये पूरा एंगल हो जाएगा 0. सो 2 cos 0 डिवाइडेड बाय 2 क्यूब n क्यूब pi क्यूब बाय a क्यूब. अंडरस्टूड और नॉट? इस प्रकार से ये खत्म हो गया स्टोरी. सब में अपर लिमिट a किया माइनस सब में 0 किया. अब ये a हो गया ये a गया तो cos 2n pi 1 है यहाँ पे लिखा था ना मैंने पहले तो वो क्या होगा यहाँ पे मैं लिखता हूँ cos 2n pi is minus 1 raised to 2n even नंबर है आंसर प्लस 1 आएगा. तो bn देखो क्या होगा bn is equal to 2 by a माइनस a स्क्वायर ये बचा cos 2n pi is 1. ओके अपॉन लिखा नहीं क्या
इधर मैंने अपॉन लिखा नहीं, अपॉन कौन, 2n पाई बाई सो इसको अपॉन लिखना पड़ेगा रे, लिखना पड़ेगा अपॉन, अपॉन कौन है, अपॉन 2n पाई बाई 2n पाई बाई ए। ओके, समझ जाओ जरा। तो यहाँ अपॉन क्या हो जाएगा, 2n पाई बाई ए। समझे कि नहीं, ये ही भूल गया हमेशा है। ओके, माइनस स्क्वायर माइनस इस अपॉन 2n पाई बाई ए, हाँ ये होना पड़ेगा। प्लस ये कौन है, 2 cos 2n पाई 1 है, अपॉन कौन होगा, 2 का क्यूब 8 n क्यूब पाई क्यूब बाई ए क्यूब होगा, बराबर। ये कंप्लीट हो गया। अब माइनस इसको लिखना है, ये कौन है, 2 cos 0 इज 1 अपॉन कौन 8 n क्यूब पाई क्यूब अपॉन ए क्यूब। इस प्रकार से कॉपी किया। अरे ये देखो प्लस 2n माइनस 2 क्या हो जाएगा बच्चों, बिंदास कैंसिल हो जाएंगे। और आपका bn क्या हो जाएगा, देखो तबियत में आ गया, bn क्या हो गया, bn योर bn बिकम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो बच्चों 2 बाई ए इंटू, ये उसको उल्टा किया तो a बाई 2n पाई, बराबर ना, a बाई 2n पाई इंटू ये क्या हो गया रे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर, बराबर, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ए कैंसल्स, 2 कैंसल्स, सो व्हाट इज bn, माइनस ए स्क्वायर बाई एन पाई, माइनस ए स्क्वायर बाई एन। ऐसे हमको क्या मिला, a0 an एंड bn मिला। अंडरस्टूड, इनको स्टोर करेंगे और सीरीज में पुट करेंगे। Now student, let us write the Fourier series. The Fourier series यहाँ पे लिखता हूँ, Fourier series given by, अब मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, f of 0 को f of x वन है, a0 by 2 summation n equal to 1 to infinity n cos n pi x by l and bn sin n pi x by l, बराबर है ना, bn sin, बराबर, जरा घाई में गड़बड़ मत करो, n cos n by x प्लस, हाँ तो यह l कौन है, n by 2 है, तो f of x होगा a0 by 2 summation n equal to 1 to infinity an cos n 2n pi x by a, बराबर, क्योंकि l a by 2 होगा, प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी bn sin 2n pi x by a। यहाँ से चाहे तो आप शुरू कर सकते हो, ये आपके पास अवेलेबल रहेगा, मेरे पास नहीं था, मैंने मिटा दिया था, तो a को a by 2 लिखा तो ऐसा आएगा। तो व्हाट इज a0 बच्चों, मैंने प्रिजर्व किया आपके लिए, a0 इज 2a स्क्वायर बाई 3, 2a स्क्वायर बाई 3 है हमारा a0, ये होगा डिवाइड बाई 2 समेशन 1 टू इंफिनिटी n कौन है बच्चों, n हमारा a स्क्वायर बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर, ओके, n स्क्वायर पाई स्क्वायर cos n पाई x बाय a प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn कौन है हमारा, bn माइनस a स्क्वायर बाय n पाई, माइनस a स्क्वायर बाय n पाई इंटू साइन 2n पाई x बाय a। तो इसको ऐसा लिखेंगे, 2 कैंसिल होगा, ये होगा a स्क्वायर बाय 3 प्लस कांस्टेंट कौन है रे, a स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर। n बाहर नहीं आ सकता क्योंकि हर घड़ी बदल रहा है n की वैल्यू, a स्क्वायर और पाई स्क्वायर कॉमन आएगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा cos 2n पाई x बाय a अपॉन n स्क्वायर बचेगा, प्लस माइनस यहाँ कॉमन आएगा a स्क्वायर बाय पाई, और क्या बचेगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी साइन 2n पाई x बाय a अपॉन n। ये है फोरियर सीरीज f ऑफ x का, अंडरस्टूड, ये अपना फोरियर सीरीज, आराम से लिखो। Please copy it because we have to go for deduction.
अब 30 मिनट के ऊपर ये वीडियो गया तो ज़रा गड़बड़ है, इसमें कट होता है, तो मैं खुद ही कट करूँगा, थोड़ा डिस्कशन करूँगा, ये डायरेक्शन थोड़ा अलग है, उसमें कैसे एरर आता है मैं आपको बताता हूँ इसी वीडियो में। नाउ लुक हियर, और एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर, आपको डिडक्शन चाहिए पाई स्क्वायर बाय 6 इज 1 बाय 1 स्क्वायर 1 बाय 2 स्क्वायर 1 बाय 3 स्क्वायर, यस 1 बाय n स्क्वायर, इसकी मुझे याद आई। तो नेचुरली मुझे x इक्वल टू 0 पुट करने की इच्छा हो गई, तो मैं पुट x इक्वल टू 0 करूंगा इन अबव सीरीज। तो यहां आ जाएगा f ऑफ 0 इज a स्क्वायर बाय 3 प्लस a स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर समेशन 1 टू इंफिनिटी, बच्चों ये क्या आ जाएगा cos, जब x 0 करूंगा तो पूरा 0 होगा अपॉन n स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय पाई समेशन 1 टू इंफिनिटी साइन, ये पूरा x 0 हो गया तो पूरा x 0 होगा अपॉन n, तो ये वैनिश हो गया, साइन 0 0 हो गया। पर f ऑफ 0 कैसे फाइंड करेंगे? हाँ सर, f ऑफ x इज x स्क्वायर, f ऑफ 0 कौन है? 0 स्क्वायर यानी 0, f ऑफ 0 मैं 0 लिखूंगा इज a स्क्वायर बाय 3 प्लस कौन है ये a स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर समेशन 1 टू इंफिनिटी cos 0 is 1 by n स्क्वायर माइनस साइन 0 वाली सब 0 हो जाएगा। तो a स्क्वायर बाय 3 यहाँ है तो माइनस a स्क्वायर बाय 3 होगा, इज a स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर समेशन 1 टू इंफिनिटी 1 by n स्क्वायर। अरे यही तो हमारा राज है, यही तो उत्तर है। तो इसको यहाँ लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस a स्क्वायर बाय 3 इंटू पाई स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू समेशन 1 by n स्क्वायर। तो माइनस पाई स्क्वायर बाय 3 समेशन 1 by n स्क्वायर का मतलब पहले n इक्वल टू 1 पुट करो, है ना, n की वैल्यूज तो 1 by 1 स्क्वायर होगा, समेशन यानी प्लस n को 2 पुट करो 1 by 2 स्क्वायर प्लस 1 by 3 स्क्वायर प्लस 1 by 4 स्क्वायर। अरे क्या आ गया सर, गड़बड़ हो गया, 1 by 1 स्क्वायर 1 by 2 स्क्वायर की वैल्यू पाई स्क्वायर में 6 है और हमें गलत मिल गई। यस, तो आपको ये धोखा समझना चाहिए, ये वैल्यू गलत क्यों मिल गई ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, शायद अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैंने आपको दिखा इस वीडियो में कि डायरेक्ट 0। अब बोलेंगे यहाँ पे सर x को हम दूसरा लिमिट पुट करेंगे, 0 टू a है तो a पुट करो, 0 टू a है तो भी आपको गलत मिलेगी, क्योंकि इसका ग्राफ जो है ना वो कंटिन्यूअस नहीं है, इसीलिए हमको ये करना पड़ेगा। हाउ मेनी मिनट्स? सो यू हैव टू ऑलवेज सी देयर। हाँ, तो ऑलमोस्ट 28 मिनट्स खत्म होने का है। तो ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि इस फंक्शन का ग्राफ आपको देखना पड़ेगा, वो ग्राफ मैं आपको बताऊंगा। अब बोलेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा? एक तो बाय प्रैक्टिस आपको पता चलेगा, ये प्रॉब्लम्स थोड़ी गिने चुने विशेषता एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, या दूसरा थप्पड़ खाने के बाद पुट करो, थप्पड़ खाओ, गलती मिल गई तो माफ करो, नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ हाउ टू फाइंड द करेक्ट वैल्यू।